Okay, as per new education policy, what new things your children are going to learn from this academic year. So this is a brief presentation and of 8 to 10 slides which I want to explain it to you as a parent, as a responsible parent who is very much interested to develop their ward, right? Lekin pre-primary is the most important time period of our ward's life. The brain development starts between the age of 2 to 8 years, right? And up till 2 to 8 years, if we are not paying attention towards our child's development, cognitive development, then we cannot even expect that they will do excellent in their future. We cannot expect also. It will not be a fair expectation. And that is why I would like to congratulate all of you that you have taken admission of your ward in a very good school of Sambhaji Nagar, who is taking all the care to train the teachers as per the new guidelines of new education policy under National Curriculum Framework foundational stage. Our school president is respected Dr. Mrs. Sanjeevani Bhosekar ma'am. Ma'am is a well-known pediatrician practicing from past 25 years in Sambhaji Nagar. Apart from that, ma'am is a very, very great mentor under whose leadership the school is flourishing. We have the school vice president, Shri Ashok Bhosekar sir. Sir is a retired assistant chief engineer from PWD and sir is the founder member of this institution. Apart from that, we have our school trustee, Shri Amit Bhosekar sir, who is the main entity working currently from past 15 years in the growth of the school. And sir is taking care of complete transportation and all the major decisions are taken by Honorable Trustee sir. The school motto is to illuminate the nation by education. The next slide says alignment with NEP 2020. Okay, so the school is aligned with NEP, New Education Policy 2020, which says emphasizing foundational literacy and numeracy, FLN. It's a very important abbreviation, FLN, क्योंकि गवर्नमेंट का कहना है कि जब तक बच्चा जो बच्चा पढ़ रहा है उसको एटलीस्ट लिटरेसी और न्यूमरेसी इन दोनों चीजों में बच्चा एक्सपर्ट होना चाहिए. लिटरेसी मीन्स इट कम्स टू योर रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, एंड न्यूमरेसी मीन्स नंबर काउंटिंग and all those things. Second is what kind of you should adopt the teaching methodologies. किस तरह से पढ़ाना चाहिए क्लास के अंदर? Play based teaching. इस बच्चा जो आपका नर्सरी में जूनियर में से क्या कहा जाता है? प्ले स्कूल. काय सांगितलं जातं याला? प्ले स्कूल. प्लेचा अर्थ काय? खेळाने शिकायचं. Learning by doing, learning by playing, learning by in a happy and fun way. So adoption of play based and activity based learning. Activity based learning के थ्रू बच्चों को हमें पढ़ाना है. तीसरा पॉइंट है फोकस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट थ्रू मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोचेस. मतलब बच्चों की किस तरह की आप डेवलपमेंट एक्सपेक्ट करते हैं? बच्चा स्कूल में आता है, किस तरह की बच्चों की इस उम्र में डेवलपमेंट होनी चाहिए? प्लीज पेरेंट्स, आप आई वांट यू टू पार्टिसिपेट. इसलिए मैंने बच्चों को ऊपर खेलने भेज दिया. येस, पहिला काय तुमची अपेक्षा आहे शाळेकडून? कुठली डेव्हलपमेंट शाळेकडून किंवा तुमच्याकडून ॲज अ पालक तुम्ही पण तेवढंच कॉन्ट्रीब्यूट करत आहात. येस प्लीज, आय रिक्वेस्ट यू प्लीज स्पीक. फर्स्ट इज फिजिकल डेव्हलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. सेकंड इज मेंटल डेव्हलपमेंट, इमोशनल डेव्हलपमेंट. थर्ड इज social development. Yes, then becomes as cognitive development, intellectual development, and then aesthetic development, and that all terms together called it as holistic development. This is the next slide. Now this is what new education policy is saying. पूरा एजुकेशन आपका बच्चे का 3 साल से लेके 18 साल तक का प्लान किया हुआ है. What is the structure? Can you all repeat it? 5 plus 3 plus 3 plus 4. What is the structure? As a parent you should be aware of this. 5 साल क्या कहा जाएगा उसे आपका? 3 plus 2, 3 साल बाल वाटिका, that is called nursery to senior KG, and 2 years first grade 1 and 2. So total comes 5 years. 3 plus 2 5, and it is called as foundational stage. आपके बच्चे किस स्टेज में है? फाउंडेशनल स्टेज. उसके बाद है थर्ड क्लास 3 to 5 प्रिपरेटरी स्टेज 3 साल का. फिर 3 साल का है 6 to 8 मिडिल स्टेज, and 9 to 12 सेकेंडरी स्टेज. So there is no senior secondary
Earlier it was senior second, now it has been removed. Are you getting parents? समझ में आ रहा है सबके? तो हमारे बच्चे कौन से स्टेज में? अभी नीचे वाले ग्रीन बॉक्स फाउंडेशनल स्टेज में है. About NCF, there is a document released by government which is National Curriculum Framework. आप चाहें तो इंटरनेट पे जाके चेक कर सकते हैं सोशल मीडिया पे. और उसका जो फाउंडेशनल स्टेज है 2022 में रिलीज हुआ, लेकिन अभी इम्प्लीमेंट हो रहा है ना. आता हे शाळेमध्ये घेतलं जाणार आहे. तर काय घेतलं जाणार आहे की दिस स्टेज कवर्स 3 to 8 years. It emphasizes on play-based pedagogy. What is pedagogy? The way of teaching to the children. Pedagogy, storytelling, music and movement. पढ़ाई अब कैसी होने वाली है? स्टोरी टेलिंग के थ्रू, म्यूजिक के थ्रू, मूवमेंट डांस के थ्रू, फिजिकल एक्टिविटीज के थ्रू, सेंसरी पाथवेज के थ्रू, कॉग्निटिव एक्टिविटीज के थ्रू, इन सब तरीके से हम बच्चों को पढ़ाने. नेक्स्ट इज व्हाट आर द की पिलर्स ऑफ आवर टीचिंग मेथोडोलॉजी डियर पेरेंट्स? As per suggested by the NEP, experiential learning, I have already informed you about experiences. Integration of Panchakosha Vikas. What do you mean by Panchakoshas? हमारे जो गुरु शिष्य परंपरा थी, उस टाइम हमारे बच्चों का पंचकोश विकास होता था. हमारे शरीर में 5 कोश हैं. हमारे दादा दादी नाना नानी को पता है, हमें नहीं पता है. क्यों नहीं पता है? क्योंकि हम इतने वेस्टर्न कल्चर में घुस गए हैं. See, you adopt Western culture, but never forget your roots. Be intact. And that we have to teach our current generation, because these children are 21st century learners. We are not from 21st century. Our kids are 21st century. जहाँ हमारा दिमाग सोचना खत्म होता है, उनका वहाँ से शुरू होता है. Right? And if I am forcing the child, do what I say, don't use your brain, then it is really a crime what I am doing with my kids. तो पंचकोशास, कोई बता सकता है यहाँ पे पंचकोशास? यस पेरेंट्स, कौन से 5 कोश हैं? एक भी कोश का नाम बता दीजिए. देखिए, म्यूचुअल, वी हैव टू म्यूचुअली टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर किड्स. अकेले मैं कुछ नहीं कर सकते, अकेले आप कुछ, हम सबको मिलकर करना है अपने बच्चों के. ओके, वी विल लर्न इन द नेक्स्ट स्लाइड व्हाट इज पंचकोशास. थर्ड इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ पंचाड़ी लर्निंग सिस्टम. ये शब्द मैं आपको गारंटी देती हूँ, संभाजी नगर के प्री प्राइमरी स्कूल्स में भी तो पता ही नहीं है, पता ही नहीं उन्हें क्या है. जो कि गवर्नमेंट, जो सिर्फ PSP स्कूल, बिकॉज वी हैव स्कूल टिल 12th. The first thing what we do is that we upgrade our teachers, update our teachers with the current new things coming in the field of education system. Panchadi learning system, that I will tell you because I am sure you may not be aware of it. Multilingualism, I have told, different languages will be used to teach, and inclusion of art, culture, nature and values. पहला कोश है अन्नमय कोश. I think ये सबने सुने हुए नाम है. अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश. ये 5 कोश हमारे शरीर में हैं. इनको हमें डेवलप करना है. यही ट्रू एजुकेशन है, ऐसा हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी कह रहा है. पंचाड़ी लर्निंग सिस्टम डियर पेरेंट्स, बहुत जरूरी है, ये आपको पता होना चाहिए. पंचाड़ी क्या होता है? 5 स्टेप्स ऑफ लर्निंग. इस तरह से हमारी क्लासरूम टीचिंग होने वाली है. Our lesson plans of our teachers are made on this concept of पंचाड़ी, which says पहिला काय स्टेप आहे? अदिती. अदिती मतलब क्या है? Introduction of the concept. Developing the curiosity to learn the concept is called अदिति. हम क्या करते हैं? बच्चे में भूख की निर्माण नहीं करते, खाना देते रहते, तो उसको क्या होता है? अपचन होते हैं, उल्टी होने लगती है ना. उसको अगर ए सिखाना है मुझे, तो पहले ए का मुझे इंट्रोडक्शन तैयार करना पड़ेगा, ताकि उसके मन में उत्साह निर्माण हो, सीखने की इच्छा निर्माण हो, और फिर उसे सिखाएंगे तो वो पचन भी होगा, डाइजेस्ट भी होगा, राइट, और जिंदगी भर याद भी रहेगा. दैट इज कॉल्ड अदिति. सेकेंड इज बोध. सेकेंड स्टेप क्या है? बोध. बोध मतलब कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब द करेक्ट वे ऑफ टीचिंग, कंसेप्ट डेवलपमेंट करने. सिर्फ पढ़ाने के लिए पढ़ाना नहीं है हमें, वो बच्चा जिंदगी भर याद रखे वो कॉन्सेप्ट. सो इफ आई एम टीचिंग लेटर ए, आई विल मेक अ स्टोरी ऑफ लेटर ए. आई विल नॉट से 2 स्लैंटिंग लाइन्स, 1 स्लीपिंग लाइन, हो गया खत्म कहानी. आई विल मेक अ स्टोरी with all the characters in that story with letter A. Then साउंड सीखते और लास्ट में मैं बताऊंगी कि भाई इसको ऐसा लिखा जाता है. सो फर्स्ट इज द कंसेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, अदिति, बोध, एंड थर्ड इज अभ्यास.
अभ्यास कम्स द प्रैक्टिस। जो सीखा उसकी प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे? थ्रू वर्कशीट और थ्रू सम एक्टिविटी। हमारे स्कूल में वी हैव डेवलप्ड सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज व्हिच वी कॉल SEAC। इन दैट द एक्टिविटीज विल बी डेवलप्ड रिलेटेड टू पंचकोशास। अगर आज मैंने अन्नमय कोश की एक्टिविटी ली है लेटर ए की, तो मैं दूसरे हफ्ते में मनोमय कोश की लूंगी, विज्ञानमय कोश। और CBSE has given plethora of activities. Only thing, as the school we have to take care of it. And I'm truly, trust me parents, schools को ये knowledge नहीं है। आप पूछे पंछाड़े क्या होता है, बता नहीं पाएंगे। Then we have प्रयोग। Fourth step is प्रयोग, application। ये जो सीखा इसका बेटा एप्लीकेशन कहाँ करोगे? आपने पाइथागोरस थ्योरम सीखा था बचपन में, कभी किया अप्लाई उसको रियल लाईफ में? नाही केलं आपण, कारण आपल्याला शिकवलंच गेलं नाही। पण आता गव्हर्नमेंट म्हणते फक्त शिकायचं नाही, ते अप्लाई करायचं, कनेक्टेड विथ योर डेली लाइफ। तो जो भी सीखा है उसको डेली लाइफ से कनेक्ट करना है, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन। और ऐसी चीजों से कनेक्ट करना है कि बच्चा कोरिलेट कर सके, उसको याद है हाँ ऐसा किया था। एंड लास्ट इज प्रसार। प्रसार मतलब एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब बच्चे ने जो सीखा है वो सामने आके बोलेगा, वी हैव लर्न दिस, आज मैंने ये सीखा। ए के इतने सारे वर्ड्स होते हैं। ए इज अ वॉवल, ए इज अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट फ्रॉम 26 लेटर, ए इज द फर्स्ट लेटर। सो मेनी थिंग्स द चाइल्ड विल लर्न एंड ही विल शेयर विथ हिज पीयर्स। क्लास में बच्चे, एक बेंच पे दो बच्चे बैठे हुए एक दूसरे को बताएंगे उन्होंने क्या सीखा है। इससे क्या होगा, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होंगी, थिंकिंग स्किल्स, और कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो दे विल ओनली आंसर, दे विल फाइंड आउट द सॉल्यूशन, क्रिटिकल थिंकिंग विल डेवलप एंड दैट इज कॉल्ड एज प्रसार। हाउ चिल्ड्रन लर्न एट PSPA? थ्रू प्ले, एक्सप्लोरेशन, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। वी टेक ऑल द एक्टिविटीज इन दिस फॉर्म। हम जब अभी पढ़ाएंगे तो इसी फॉर्म में पढ़ाएंगे। मी पुस्तकं घेऊन लिहायला लावणार नाही, पण तुमच्या मुलाला सगळं लिहिता येईल ही आमची जबाबदारी। लर्निंग सेंटर्स, व्हाट आर आवर लर्निंग सेंटर्स? आर्ट, नेचर, रीडिंग ब्लॉक, सैंड, वाटर। इन सब ये मैंने कुछ नाम डाले हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें जिससे हम सिखाते हैं। वी हैव सैंड पेट। सैंड को छूने के बाद बच्चे के हाथ में जो मूवमेंट्स होते हैं, जो फील करता है, दैट इटसेल्फ इज अ लर्निंग, यू नो। उसके बाद हम सी एनिमल्स लाते हैं, उनके वी ब्रिंग द, you can say the toys of sea animals, in that they fill up the sand, they make the shapes, so many things we do. Then we have celebration and cultural activities. You know, we celebrate all the important festivals in our school, but many of us are not knowing the scientific importance of our festivals. होली क्यों हम खेलते कलर्स से? क्योंकि हमारे जो रोमकूप है वो ओपन होते, गर्मी आने वाली होती, इसलिए होली का त्योहार मनाए। साइंटिफिक रीजन हम बच्चों को बताते नहीं। तो वी आर फोकसिंग, एम्फसाइजिंग मोर ऑन टेलिंग देम व्हाई यू शुड सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल एंड हाउ यू शुड सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल। असं नाही की सण आला की चला आता पूर्णावरणाचा स्वयंपाकाला संपला विषय। लेडीजसाठी स्पेशली मी म्हणते, असं होतं घरी, आपल्या सण आला की टेन्शन येतं डोक्यात आणि सगळ्यांना आनंद तर सुट्टी मिळणार आहे, पण त्याच्यावर काय मुलांना काय शिकायला भेटतं याच्यातून? का हे सण साजरा करतो, पण व्हाय वी सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल, अँड दॅट इज गोइंग टू बी टोल्ड इन द स्कूल while celebrating all the festivals, because we want to make them aware with our enriched culture. भारतीय संस्कृति इतनी समृद्ध संस्कृति है कि हमारा कर्तव्य भारतीय नागरिक ऐसे हम डेवलप करें आगे आने वाले, जो कि अपनी संस्कृति पे गर्व करें, जिन्हें अपनी संस्कृति की जानकारी हो, बहुत जरूरी है। नहीं तो हम एक अच्छे पेरेंट या अच्छे टीचर कहलाने के लायक नहीं। एंड लास्ट इज कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन बेस्ड असेसमेंट। यू ऑल नो, जो पेरेंट अभी जूनियर में है, सीनियर में, कि हम 2 यूनिट टेस्ट लेते हैं और 2 टर्म एग्जाम्स लेते हैं, लेकिन इस साल हम थोड़ा पैटर्न चेंज करने वाले हैं और हम मोस्टली बच्चों के थ्रू आउट द ईयर, साल भर हम ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे। एंड इस साल हम एक नई चीज करने वाले हैं, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स का अर्थ है कि बच्चा आपका क्या कर रहा है, उसके छोटे छोटे ऑब्जर्वेशंस हम नोट डाउन करेंगे विद द डेट, डे एंड टाइम। आज आपका बच्चा बहुत उदास है। Why Rahul is upset? Rahul is upset because Rahul's mother is not keeping well, and that is why he could not bring the food as per the menu given. उसने फिर लाई मैगी, जो कि स्कूल में अलाउड नहीं है। तो उससे क्या हुआ, बच्चा अपसेट, डरता है बच्चा, टीचर डांटेगी तो अपसेट है, नाराज है। तो ये
ऑब्जर्वेशन टीचर ने किया, फिर घर पे बात की। और एक छोटी छोटी चीजें कि भाई बच्चे ने आज किसी से झगड़ा हो गया क्लास के अंदर, सो ही इज वेरी एंग्री। तो ये जो चीजें, ये जो भी हम उनके फीलिंग्स को रिकॉर्ड करेंगे, एनेक्डोट्स बनाएंगे और हम हर पीटीएम में आपको दिखाएंगे, आपकी सिग्नेचर होगी उस पर कि मेरे बच्चे का कितना माइन्यूट ऑब्जर्वेशन स्कूल में किया जाता है। एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू टू नो योर चाइल्ड। व्हाट इज द रोल ऑफ पेरेंट्स? प्लीज पेरेंट्स यहाँ देखिए, आपके बारे में है, आपका क्या रोल है? सिर्फ बच्चे को बड़ा करना? पेरेंट का रोल है, जो स्कूल एक्सपेक्ट करता है, एनकरेज द क्रिएटिविटी ऑफ योर चाइल्ड, नेवर डिस्करेज द चिल्ड्रन, इन्वॉल्व चिल्ड्रन इन स्मॉल चोर्स। चोर्स मीन्स छोटे छोटे जो घर के काम होते हैं। मम्मा अगर खाना बना रही है, बेटा गिव मी टमेटोज फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर, बोल सकते हैं ना आप, मुझे फ्रिज में से टमेटोज दो, पटेटो या फिर ये दे दो, लेमन्स दे दो, है ना, मुझे आप ग्लास ऑफ वाटर ला के दो, है ना। तो बच्चों को छोटी छोटी, या फिर गार्डनिंग द वाटरिंग द प्लांट्स, घर में अगर आपके गार्डन है तो उनको पानी देने के लिए बोलिए। छोटी छोटी चीजों में बच्चों को इन्वॉल्व करिए, बहुत जरूरी है। नहीं तो बच्चा जीवन जीने की कला है ये। और हम भी स्कूल में उनको, हमारे क्लास में हम क्या करने वाले हैं अभी, हम बच्चों की मदद से we are going to do the school activities also. Let us go in the play area, let us check the play area is well or not, let us see the classroom is clean or not, let us go and एक दूसरे की बुक्स देखिए, बैग देखिए प्रॉपरली लाइंड अप है कि नहीं। छोटी छोटी एक्टिविटीज हम बच्चों से करवाने वाले हैं। इससे क्या होगा, बच्चे में कॉन्फिडेंस आएगा, बच्चे इंडिपेंडेंट होना सीखेंगे। हम क्या करते, बच्चे को अपंग बना रहे हैं, तू करूस नको मी करते, तू करूस नको मी करते। अरे तो करणार नाही, चलणार नाही, पडणार नाही तर शिकणार कसं? आपले आई वडील म्हणायचे पडू झडू मालवाडू। तो मुलगा पडला कि आईचं जीव वर खाली। अरे गिरने के बाद उसको कुछ नहीं बोलना है, जब वो खड़ा हो जाएगा पूरे घर में तालियां बजानी उसके लिए। तो इसने उससे क्या सीखा, फेलियर में कभी रोना नहीं है, खड़ा होना है। जब वो खड़ा होगा पूरी दुनिया उसके लिए क्लैपिंग करेगी। डियर पेरेंट्स, व्हाट मेक्स पीएसबी डिफरेंट? ब्लेंडिंग ट्रेडिशन विद इनोवेशन। हम ये नहीं बोलते पुराने ख्याल के हैं, हम भी नए ख्याल के हैं, लेकिन हम अपनी जड़ों को भूले नहीं हैं। We are going to blend tradition with innovation, aligned with NCF, NEP and Indian values. NCF क्या है? National Curriculum Framework, और NEP है New Education Policy. Focused on overall development, मतलब body, mind and soul. It should be aligned. And last, we also provide bus facility to our parents, which is as per kilometers the charges are. And this is the last one. Let's build the future together, dear parents. A strong future, build a strong tomorrow. है ना, आपके बच्चे का अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है तो बिल्डिंग तो 110% स्ट्रॉन्ग ही खड़ी होगी। लेकिन अगर प्री प्राइमरी एकदम अच्छे स्कूल से नहीं की तो ऊपर बिल्डिंग ऐसी नाइसी। एंड वी नर्चर एवरी चाइल्ड विथ लव, केयर, विजडम एंड जॉय ऑफ लर्निंग, and we believe in creating responsible citizens of our beloved nation. क्योंकि आपको पता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलती है कि हर एक बच्चा जब स्कूल से बाहर निकले तो सबसे पहले उसमें क्या डेवलप होना चाहिए, देशभक्ति, पेट्रियोटिज्म। अगर राष्ट्रभक्ति नहीं है तो क्या फायदा है ऐसे नागरिकों का, है ना। तो सबसे पहले बच्चों में देश के प्रति भक्ति, बड़ों के प्रति आदर, चीजों के प्रति रिस्पेक्ट, इंपॉर्टेंस। ऐसा नहीं कि भाई वेस्ट कर रहे हैं रिसोर्सेस को, ये सब हम उन्हें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया बनाने की कोशिश करते पढ़ाई के। दैट इज ऑल। थैंक यू फॉर योर अटेंशन डियर पेरेंट्स।